Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I have started the recording of our session. Other students will join in shortly. Uh, so this is the second session of specifying requirements uh, between the chapter 4 and chapter 11 of the book. So requirements are important. So that's why we primarily study them in more detail and in depth. उसकी वजह यह है कि इन रिक्वायरमेंट्स फेज there may be some errors or some primarily things which are missed and later if incorporated may be more possible if not impossible. So in this second session जो हमें बहुत क्विकली करना है have four primary one is use of state machine for representing the requirements, then complex capture the complex requirements and algorithmic requirements with activity diagram and validate those models by using the simulation. यूज केस डिस्क्रिप्शन अक्सर जो सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर जो फील्ड्स अवेलेबल हैं अगर आप देखें तो the name of the use case, the person who is responsible, the purpose of the use case, and there are some optional requirements and data, and the precondition and post conditions क्योंकि इनको चेक किया जाएगा जब हम यूज केस को स्टेट डायग्राम से रिप्रेजेंट and if there are some linked reference documents अगर हम इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं इन दिस एग्जांपल जो कि एक सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हैं उसमें से ली गई है it clearly represent in the description tab of the use case the name of the use case, the owner, the purpose, the data and pre-post conditions and also the reference documentation. Similarly, in another example, which is primarily for the use case of maintain stable flight, there are the owner, the purpose, and the data and pre-post conditions, and also some reference documents if are available. Because this is a UAV called KOT, so the KOT handbook is mentioned in the reference documents. All these things are available, the diagrams are available in the book. अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो उसको मजीद डिटेल में जाके देखना सो इट इज़ पॉसिबल. So the state machine for requirements capture. Why it is state machine? Because the embedded systems are usually the reactive system. They monitor the environment and depending upon जो भी हमने उसमें condition दी है और वो कंडीशन या वो सिग्नल इवेंट अकर होता है और उस इवेंट के अगेंस्ट वो कुछ फंक्शन एग्जीक्यूशन करते हैं कुछ एक्शन करते हैं और दे देन चेंज देयर स्टेट and after execution they primarily again enter into the wait state for the next event. So state machines are usually used to specify the requirements of the reactive systems. This is a typical example, although we can use state machines to monitor some events as well and take some proactive action, but in this particular context, it is primarily labeled as a reactive system. Okay, Wahab Saab keh rahe hain, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Okay, so we can use state machines to capture the behavior of the embedded systems. इस स्लाइड का मकसद था. Now how this modeling primarily occurs by use of the state machine. Modeling का context हम जानते हैं. Usually we model system by using the mathematical operations. We can also model system by some. We have a chat.
ओके, इलेक्ट्रिसिटी इशू है। अगर आप वहां अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ रियली एन इशू। तो उस सूरत में आप फिर रिकॉर्डेड सेशन की वीडियो चेक कर लीजिएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सो स्टेट मशीन्स जो हैं अगर हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, देन वी हैव इनकमिंग, दैट मीन द इवेंट्स, एंड द आउटगोइंग सिग्नल्स, दैट मीन द आउटगोइंग मैसेजेस। These messages can be commands or data, and they can be associated with actors or actions. Okay. Actors can be external or internal actors, and similarly actions are usually actuations. Underlying technology and design should not be expressed. Technology, because state machines are usually in software or on paper. हम पेपर यूज करते हैं या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, so technology is not used in the स्टेट मशीन के जो है वो आर्डिनो बोर्ड यूज हो रहा है या फिर एनवीडिया का कोई ग्राफिक्स बोर्ड डेवलपमेंट किट यूज हो रही है। देन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, दीज आर इंक्रीमेंटली डेवलप, ये हम आगे वाली स्लाइड में देख लेंगे। And state machine is verified multiple times whenever an increment is coming on and incorporated, and soon it will become a complex state machine, ठीक है, और जिसको डिबग करना मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन इंक्रीमेंटल अगर अप्रोच या नैनो साइकिल अप्रोच को फॉलो किया जाए, देन इट इज़ वेरी इजी। Scenarios for the use case are primarily the transition paths। यूज केस के साथ डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे एटीएम है, एटीएम को आमतौर पे कैश ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है, बट एटीएम कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्राइमरली सेट द जो रीसेट या सेट द पिन ऑफ द कार्ड, एंड सिमिलरली इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू पे द बिल्स। So different scenarios can be associated with a use case. So when we are talking about the development of state machine in the Harmony nanocycle, it is primarily a test-driven development environment or practice of the test-driven development. ये कैसे होगा, इसको हम देख लेते हैं। ये बहुत आसान है और हम आमतौर पर यही करते हैं। हम एक छोटे से प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम आर्डिनो बोर्ड के साथ खेल रहे हैं तो हम आमतौर पे एलईडी से स्टार्ट करते हैं, फिर एलईडीज को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर देते हैं, जो डिफरेंट डिवाइसेस है, सेंसर है उससे रिप्लेस कर देते हैं, मोटर है मोटर से रिप्लेस कर देते हैं। So we enter into a repeat cycle in which we select few requirements, and then we primarily make that state machine based on those requirements, and then we verify. And when we are satisfied with that state machine, then we add some more requirements, and after adding some more requirements we again validate, or after validation we again repeat the same process until we complete the whole state machine. तो incremental process है, थोड़ा थोड़ा करके इसको आगे, इसके एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। State charts are a great way to formally capture a behavior specification. हम लो वॉल्यूम मोड जो है इवनिंग, क्योंकि इवनिंग में ट्रैफिक कम हो जाती है, उस यूज केस की बात कर लेते हैं, और उस यूज केस के पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं क्या है कि इस सूरत में जो है वो नॉर्मल जो लाइट्स है वो ऑन नहीं होंगी, बल्कि नॉर्मल लाइट्स की बजाय जो है वो फ्लैश लाइट, और फ्लैश लाइट में आप देखिए 0.5 हर्ट्ज उसने कहा है, और ड्यूटी साइकिल ऑन ड्यूटी साइकिल 75% है, और ऐड एन इनिशियल डिले सो दैट जो ट्रैफिक एंटर हो चुकी है इंटरसेक्शन में वो गुजर जाए। सो दिस इज अ नॉर्मल प्राइमरी सिनेरियो और यूज केस। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम में लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट किया गया है। इस ब्लॉक डायग्राम में अगर आप देखें तो सेंटर में यूज केस है, ठीक है, इसको इवनिंग लो वॉल्यूम मोड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो यूसी यूज केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक क्लास जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ऊपर अगर देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी पेडेस्ट्रियन है,
ठीक है, प्राइमरी पेडेस्ट्रियन है और सेकेंडरी पेडेस्ट्रियन। इसी तरीके से जो ट्रैफिक है, अब ट्रैफिक के दो मोड हो सकते हैं, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। या तो ट्रैफिक सीधी गुजर रही होगी या ट्रैफिक जो है वो टर्न ले रही होगी। तो प्राइमरी जो लेन है उसमें ट्रैफिक के लिए या तो प्राइमरी ट्रैफिक सीधी पास हो रही है या फिर ट्रैफिक जो है वो टर्न ले रही है, और सेकेंडरी में भी यही है। तो तीनों केस आ गए इसमें, जो प्राइमरी लेन है, सेकेंडरी लेन है, और इसी तरीके से जो पेडेस्ट्रियन है। पेडेस्ट्रियन में भी प्राइमरी और सेकेंडरी पेडेस्ट्रियन जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया गया है अलग अलग। अब बिहेवियर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखें, वन हैव टू प्रोवाइड ए डिले बिफोर स्टार्टिंग द फ्लैश, यानी जब हम इस मोड में एंटर होंगे तो फ्लैश लाइट से पहले थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा, फिर फ्लैश लाइट ऑन और ऑफ होती रहेगी। तो जैसे ही हम राइट साइड की डायग्राम देखें, जैसे ही हम एंटर होंगे तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, यानी द सिस्टम शैल गो टू द ऑल रेड। सबसे पहले तमाम जो है वो रेड पे चला जाएगा। अब यहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा ताकि ताकि जो ट्रैफिक इस वक्त इंटरसेक्शन में एंटर हो चुकी है वो गुजर जाए। जैसे ही वो टाइम लैप्स होगा, टाइम खत्म होगा, तो फिर फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। फ्लैश लाइट ऑन होने के थोड़ी देर के बाद फ्लैश लाइट ऑफ होगी, और फिर थोड़ी देर ऑफ रहने के बाद वो दोबारा से ऑन होगी। इन्होंने जो उसकी टाइमिंग जो सेट की है या जो रिक्वायरमेंट सेट की है वो ये रखी है कि जो ड्यूटी साइकिल है वो 75% ऑन और 25% ऑफ होना चाहिए। ठीक है, अगर टाइमिंग में देख लें तो इसके यूनिट देखें कि इन्होंने 1.5 सेकंड के लिए इसको ऑन किया है, और इसी तरीके से 5 सेकंड के लिए इसको ऑफ किया है। तो ये टाइमिंग इस तरीके से इसने स्पेसिफाई किया। इसको प्रोग्रामिंग में देख लें कैसे इसने इनिशियलाइज किया है, ये थोड़ी देर में आ जाएगा। सो क्रिएट स्टेट चार्ट इंक्लूड 3 स्टेप्स। ये एक टास्क उसने दी है, किताब में एग्जांपल की है। कैप्चर द बिहेवियर, टर्न लेन्स एंड देन ऐड द पेडेस्ट्रियन लेन। यानी सबसे पहले सिंपल केस से आप स्टार्ट कीजिए। पहले आप लेन और पेडेस्ट्रियन को इग्नोर कर दें, सिर्फ और सिर्फ जो सिग्नल्स हैं उनकी बात करें कि सिग्नल ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं, और फिर जो है वो आगे जाएं, उसमें फिर लेन ऐड करें, प्राइमरी और सेकेंडरी लेन ऐड करें, फिर पेडेस्ट्रियन ऐड करें, प्राइमरी और सेकेंडरी पेडेस्ट्रियन। अच्छा, पहली एग्जांपल कंप्लीट हो गई। अब ये दूसरी एग्जांपल है। जो पहली एग्जांपल थी वो इवनिंग लो वॉल्यूम मोड के ऊपर थी। अब जो एग्जांपल आएगी ना वो फिक्स्ड साइकिल टाइम, यानी जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसके हिसाब से। अगर देखें तो इसमें नैनो साइकिल्स जो किताब ने दिए हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन फोकस जो है वो पहले 3 पे होगी। ठीक है, पहले 3 पे। सबसे पहले ये डायग्राम देखिए, इसमें जो है वो लेन और पेडेस्ट्रियन दोनों को इग्नोर कर दिया गया है, यानी ट्रैफिक जो प्राइमरी सेकेंडरी लेन है और प्राइमरी सेकेंडरी पेडेस्ट्रियन है उसको इग्नोर कर दिया गया है, और सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल जो लाइट्स हैं उनकी बात की गई। So it will be initialized as all stop, that means red light, and then for primary it will start from red, then go to green, yellow, and then wait for the secondary red. यानी यहाँ से जो रेड है उसको वेट करेगी, फिर दोबारा से स्टार्टिंग साइकिल हो जाएगा। जबकि सेकेंडरी के लिए अगर हम देखें तो इट विल स्टार्ट विथ रेड फ्रॉम प्राइमरी। ठीक है, पहले तो रेड हो ही चुका है ना सिग्नल, बट इट विल स्टेट जैसे ही प्राइमरी रेड होगा प्राइमरी जैसे ही रेड होगा फिर ये जो है वो इसका ये साइकिल शुरू होगा। देन इट विल for some time it will again become red and then go to the green and then yellow and then again enter in the way। यही होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई होती हैं वो इसी तरीके से सर्कल कर रही होती हैं। पहले एक तरफ की ट्रैफिक को गुजर जाने देती हैं, फिर दूसरी तरफ की ट्रैफिक को गुजर जाने देती हैं, और इस तरीके से जो पोल है वो आपस में रेड का वेट कर रहे होते हैं। अगर दूसरी तरफ रेड आ जाता है तो फिर वो अपना साइकिल स्टार्ट करते हैं। Okay, if there is any question on this diagram,
ये बहुत आसान और सिंपल सा केस है जिसमें स्टेट मशीन बनाया गया है और इस स्टेट मशीन में ये बताया गया है कि जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो किस तरीके से ऑन एंड ऑफ हो रही हैं। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम अब्दुल वहाब? नहीं सर, कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब और क्लियर है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा ये जब नेक्स्ट वो ऐड होंगे, लेकिन आप देखिएगा कि किताब में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है, but it will remain like this, like a state machine. It will wait for an event or based on time. It will again circulate, चलता रहेगा। जैसे कुछ इवेंट टाइम बेस्ड है, टाइम बेस्ड कुछ टाइम के बाद वो आगे, कुछ इवेंट जो है वो सिग्नल बेस्ड है, यानी कुछ वो वेट करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही वो सिग्नल आएगा वो आगे बढ़ जाएंगे। जी अदील, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू। बासित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर, अभी ठीक है। जी मुनीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मुझे समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि 2 सिनेरियोज और देख लें। सबसे पहले पोर्ट जो इनिशियलाइजेशन है वो देख लीजिए। इनिशियलाइजेशन बहुत आसान है, अगर ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है उन्होंने देखें हर नाम दिया है और साथ साथ उसको एक आइडेंटिफिकेशन दी है। तो पहले तो पोर्ट्स में हर पोर्ट को एक नाम दिया है और उसको आइडेंटिफिकेशन दी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये तो हो गए पेडेस्ट्रियन लेन। इसके बाद व्हीकल्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, और इसी तरीके से फिर आगे जो है वो अगर वो सेकेंडरी जो है वो सीधी ट्रैफिक जा रही है सेकेंडरी थ्रू, और अगर सेकेंडरी ट्रैफिक टर्न कर रही है सेकेंडरी टर्न। तो इन तमाम चीजों को डिफाइन करने के बाद जो है वो फिर इनिशियलाइज कर दिया गया है। ये सी लैंग्वेज का सिंपल सा सिंटैक्स है कि किस तरीके से इनिशियलाइज किया गया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि स्टेट मशीन फॉर व्हीकल। व्हीकल यहाँ पे चूंकि इसके साथ ए लिखा हुआ है ना, ये एक्टर के तौर पे। व्हीकल में देखिए आपके व्हीकल में एक तो इसका नेम होगा और एक इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, ठीक है। जैसे ही व्हीकल एक जो है वो एंटर होगी, और इसके बाद अगर आप जाएं, ये अराइवल का इवेंट है। इसके साथ देखें कि इसके साथ जो सिग्नल यानी जो इसको व्हीकल को मिल सकते हैं वो रेड, येलो और ग्रीन, इन तीनों में से कोई एक सिग्नल मिल सकता है। उसी के बेसिस पे व्हीकल ने फिर रिएक्ट करना। तो ये तो व्हीकल के लिए स्टेट मशीन है जो बहुत आसान और सिंपल सी है। इसी तरीके से पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने वाले हैं, वॉकिंग, उनके लिए देख लीजिए, उनका नाम है, उनकी आइडेंटिफिकेशन है और एक इवेंट उनके साथ है, अराइवल का इवेंट है। और इसी तरीके से या वो वॉक कर रहे हैं, या वो रन कर रहे हैं, या वो डू नॉट वॉक कर रहे हैं। ये वो उनके लिए जो वो इंडिकेटर है ना, जिसके ऊपर लिखा हुआ आता है वॉक करो या रश करो ताकि फौरन जल्दी से पहुंच जाओ, या डू नॉट वॉक, ठीक। तो ये इस तरीके से ये जो स्टेट मशीन है, जो सिंपल सा एक ब्लॉक डायग्राम की सूरत में एसोसिएट विद पेडेस्ट्रियन एक्टर, ठीक है। ए स्टैंड फॉर एक्टर, जो कि एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो हाउ वी सिमुलेट इट, इसको सिमुलेट कैसे करेंगे। देखिए सिमुलेशन के लिए जो है वो ये डायग्राम यूज होंगी जो सीक्वेंस डायग्राम है। सबसे पहले फिक्स मोड के लिए इनिशियलाइज, वंस इट इज इनिशियलाइज देन डिफरेंट इवेंट्स स्टार्ट अकरिंग। इवेंट्स जो है वो अकर होना स्टार्ट होंगे और इस तरीके से जो है वो प्राइमरली, ये हम चूंकि सीक्वेंस डायग्राम की एक एग्जांपल कर चुके हैं तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसमें कि ये जो प्राइमरली जो स्टेट डायग्राम है इसको सिमुलेट किया गया। आगे बढ़ते हैं। द सेकंड पार्ट इज टू इंट्रोड्यूस द लेन्स, ठीक है, टर्न लेन्स। सो द प्राइमरी टर्न लेन एंड द सेकेंडरी टर्न लेन इज इंट्रोड्यूस्ड, और आप देखें कि ये भी इंट्रोड्यूस की गई है और इसके साथ साथ थोड़ी सी एडिशन भी की गई है। और एडिशन की गई है, यहाँ पे एक कंडीशन डाली गई है। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ जो पहले डायग्राम बनाई गई थी उसमें कंडीशन डाली गई। इसमें कंडीशन क्या डाली गई है, वेटिंग फॉर द टर्न के लिए कंडीशन डाली गई है। तो पहले जो कंडीशन मौजूद थी, यानी पहले जो सिग्नल वेट हो रहा था वो सेकेंडरी रेड था, लेकिन अब जो है वो प्राइमरी टर्न के लिए एक वेट डाला गया।
Based on this, another some additions are made to the earlier diagram for both primary and secondary. ठीक है, और इसी तरीके से प्राइमरी टर्न और इसमें जो है वो नो वेट एंड वेट इसके दरमियान में जो है ये एक छोटा सा और भी एडिशन की गई है। अगर हम देखें तो यूज केस स्टेट मशीन हैंडल बोथ थ्रू एंड टर्न ट्रैफिक, यानी दोनों ट्रैफिक जो है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, और साथ साथ बिकॉज इट्स ए कम्प्लेक्स स्टेट डायग्राम नो एंड